really blessed to have you and Sister Samina as my spiritual mother and father. I really thank you. And I thank Father God that He has given me this opportunity to speak on marriage again. And I glorify God in all that He will do today. And in all works, we just give glory to Lord Jesus Christ and our Father. Amen. Thank you, Sister Sweetie. So as we all know, I don't know if there are new people in here, we are doing series on marriage. यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको पता नहीं है कि मैंने लास्ट वीक से मैरिज के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है. So just to give you a review of what we said last week, we were just talking about what marriage is and what God wants in marriage. और मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी, थोड़ा रिकैप देना चाहूंगी, थोड़ा बैकग्राउंड की शादी क्या है और उसका गठबंधन क्या है, परमेश्वर की नजरों में उसके मायने क्या है. So as we discussed previously, marriage is a holy gift of God. It is a communion between husband and wife and God. और ये जो शादी जो है वो परमेश्वर से एक तोहफा है और एक ऐसा गठबंधन है जो पति पत्नी और परमेश्वर के बीच में होता है. And we also learned that there are different kinds of love in our lives that God has given. और हमने ये भी देखा कि तरह तरह के प्यार है जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक तोहफे के रूप में दिया है. Which is number one is agape kind of love, that is God kind of love. और सबसे पहला जो लव है वो अगापे लव है, मतलब परमेश्वर जिस तरह से प्यार करता है वो एक अमर प्रेम है. And then we have sacrificial love. और एक लव है जिसमें हम बलिदान देते हैं. Then we have sanctifying love. और एक जो प्यार है जो एकदम पवित्र होता है. And then we also see that all this love is covered in Christ. So if we believe in Christ, the Holy Spirit and Father God, our marriage is blessed. ये सब जो प्यार है, जो डिफरेंट तरीके से प्यार है, अगर हम परमेश्वर में रहते हैं तो परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा जो है वो इन सब प्यार के अंदर हमारे साथ रहते हैं. But what we are going to talk in today is a little bit hard, like it's a hard topic, and sometimes like people may like it or not, you know, but it is very important for singles, for couples, and people who are planning to get married. और मैं आज एक बात बताना चाहूंगी, काफी कठिन है, पर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, जो लोग शादीशुदा है उनके लिए, शादी करने वाले हैं उनके लिए है. And these are the principles that can actually help us sustain our marriages and what really God wants in a person if we start finding our perfect partner in Christ. और जब हम अपने लिए एक जीवन साथी को ढूंढते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर उसमें से हमारे लिए क्या चाहते हैं. So once we start, like everybody wants good relationships. सब चाहते हैं अपने लिए एक अच्छा रिश्ता. And we want a perfect partner for us, a perfect candidate और for marriage. हम चाहते हैं कि हमारी शादी में हमारा जो जीवन साथी हो वो एकदम परफेक्ट हो. But the information that we need to know to find that right partner, we don't have sufficient information. Like what kind of questions should we ask ourselves? और जब हम जीवन साथी को ढूंढते हैं तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है और हमें वो नॉलेज भी नहीं रहता है कि हम किस तरह से सवालात पूछे और किस तरह से उसको हम जाने. If we see the biblical marriage and engagement, it is very important. जब हम बाइबल के नजरिए से शादी को या रिश्ते को देखते हैं, so it is very important to get the consent of your parents before getting married. तो उसमें ये रहता है कि जो माँ बाप की रजामंदी आपकी शादी में बहुत जरूरी होती है. And first and the foremost is like God's consent.
और सबसे पहले ये होता है कि खुदा की रजामंदी उसमें बहुत जरूरी होती है. If we see in the Old Testament अगर हम पुराने नियम में देखते हैं and the New Testament, और नए नियम में भी हम जब देखते हैं, according to Jews, engagement was sacred and it was compared to marriage. और जो सगाई की जो रस्म थी वो इतनी इम्पोर्टेंट थी जितनी कि शादी की रस्में. If we see Mary and Joseph, जैसे हम देखते हैं कि मैरी और जोसेफ को, in those times, what happened was like two families used to sit together and sign a contract. उस वक्त ये होता था यहूदियों में कि जो दो परिवार एक साथ मिलके बैठते थे और एक कॉन्ट्रैक्ट को या फिर एक अहदनामे को वो साइन करते थे और कोई एग्रीमेंट पे आते थे. It was called betrothal. और उसको बिट्रोदल कहते थे. इसका मतलब ये है कि वो एक रिश्ते में बनते हैं. And that contract was called ketubah. और उसको एक नाम दिया गया है ketubah. This is arranged marriage, but it is a bond between a husband and wife, and that time that bond was considered so serious that if you break it, that had consequences. और ये एक ऐसा रिश्ता था, एक ऐसा गठबंधन था कि इसमें दोनों परिवार मिलके इसको बनाते हैं, लेकिन जो दो लोग हैं उसको उस रिश्ते को सीरियसली लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके अंदर वो कोई भी कमी ना आए उसका वो ध्यान रखते हैं. But nowadays, if we see, we don't consider engagement that serious. We think that if we are getting engaged, if we don't like the person, we can probably break the engagement and get married to someone else, or, you know. पर आजकल के जमाने में ऐसे जब सगाई होती है तो वो ये उसको इतना सीरियसली नहीं लेते. वो ये कहते हैं कि अगर हमें उसके साथ नहीं आगे बढ़ना है तो हम सगाई को तोड़ सकते हैं और किसी और के साथ भी हम शादी कर सकते हैं. So the first and the foremost thing is you need to be honest with the person you're getting married to. और सबसे पहली चीज ये है शादी में कि जिसके साथ आपका रिश्ता जुड़ने जा रहा है आप उसका सम्मान करें, उसके साथ वफादारी से रहे. You need to think that is this the right person you're getting married to? और आपको सोचने की बहुत जरूरत है इसके पहले कि आप आगे बढ़े कि जिसके साथ आपका रिश्ता जुड़ रहा है क्या वो सही जीवन साथी है आपके लिए. Well, there are lots of ways we can find out if this is the right person. और बहुत सारे रिश्ते हैं रास्ते हैं जिसको अपना के हम देख सकते हैं कि ये जो पार्टनर है वो आपके लिए सही है या नहीं है. The first is that you need to be a believer. The person you're getting married to should be a believer. और सबसे पहली शर्त यह है कि जिसके साथ आपका रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो एक विश्वासी होना चाहिए. If you see the verse which is 2 Corinthians chapter 6, अगर आप पढ़ना चाहे 2 Corinthians उसका 6वां अध्याय verse 14. दूसरा Corinthians उसका 6वां अध्याय और उसकी 14वें आयत में ये लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है. So here God is talking about what does darkness have to do with light. और यहाँ पे ये कहा गया है, परमेश्वर ये कहता है, I have to do with darkness, sorry. यहाँ पे ये कहा गया है कि अंधकार का रोशनी के साथ क्या लेना देना है. Now there are multitudes of things that disqualify an individual. और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये एक चीज उभर के आती है. If they are non-believers, God God does not appreciate a Christian to be, married to a non-believer, because if you get married, then you face consequences in your marriages. It's not very easy. और ये आसान नहीं है. अगर कोई अविश्वासी से शादी करता है तो खुदा पहले तो उसको मंजूर नहीं करता है और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है. And then
the other is if the person, so it's for the parents as well, like obviously every parent would like to give their children to a person who is working, और their daughter especially. हर एक माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छे रिश्ते मिले, स्पेशली जो जो लड़कियों की माँ बाप होते हैं उनको ये होता है कि उनका जो जीवन साथी है वो कमाने वाला हो. Because if he's not working, of course he's gonna depend on, you know, you, and that's not a healthy marriage. That's not what God wants, because God has clearly said that husband is the provider of the family. और अगर जो लड़की का जो शौहर है अगर वो काम नहीं करता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, और वचन ये कहता है कि जो पति जो है वो हर एक जरूरतों को पूरी करने वाला होना चाहिए. There are a number of attributes which you want to make sure are not present before you even start to consider taking that person in your life. और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें ये जीवन साथी हमारे जीवन में चाहिए या नहीं चाहिए. God wants us to be with that person for the rest of that life. So this decision is very important. क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं कि जिसको आप चुनते हो उसके साथ आप जीवन भर रहो, इसीलिए हमें एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए. Being humans, we need to imagine whoever we are getting married to or engaged to, that is this person gonna stand with you in your happiness, in your sorrows, in your tough times, in your good times. और इंसान होने के नाते हमें इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें सोचना चाहिए कि जिसके साथ आप जुड़ रहे हो क्या वो आपके साथ हर एक दुख में, तकलीफ में, मुश्किलों में आपके साथ खड़ा रहेगा या नहीं. When we come to a marriage altar and we take vows, जब हम शादी के वेदी पर आते हैं और जब हम शादी के बंधन में जुड़ते वक्त जो ओथ या जो सौगंध हम लेते हैं, there are some extreme vows that we take, such as will we be with that person in joy and sadness? और वहां पे हम काफी गंभीर सौगंध को लेते हैं कि हम इस इंसान के साथ हम दुख में और तकलीफों में भी हम जुड़े रहेंगे. Sickness and health, हम मांदगी में और अच्छे दिनों में भी हम बने रहेंगे. anybody could be with the person in their times when times are good, और कोई भी एक रिश्ते में जुड़ा रहता है जब वक्त अच्छा होता है, when you're prosperous, जब आपके पास बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी होती है, when you're healthy. जब आपकी सेहत अच्छी होती है. But these words demand to be in a marriage commitment when a person is sick or a person is, you know, sad, having sorrows, so everything. पर उसके साथ so we become a partner with them. पर जब हम जीवन साथी बनते हैं तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि जो जीवन साथी है वो दुख में या तकलीफ में या मुश्किलों में या खराब वक्त में भी उसके साथ खड़ा रहे. When we are signing that marriage certificate, we are actually signing a contract which says that we will be with them in their highs and lows. और जब हम ये मैरिज के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जब उसको उस पे साइन करते हैं तब हम उनको ये कहते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, एक वादे को साइन करते हैं और हम ये कहते हैं कि चाहे वक्त अच्छे हो या बुरे हम इस इंसान के साथ बने रहेंगे. Now that person, just we need to imagine if we are the worst sometimes, can we imagine to be with that person, and can that person hold us in the times when things are not good? जब अच्छे हालात नहीं रहते हैं या कोई इंसान अच्छा नहीं है, क्या हम तभी भी उसके साथ बने रहेंगे? Now to find the right person, you need to be in the right place. एक अच्छे सच्चे जीवन साथी को ढूंढने के लिए तुम्हें एक अच्छी और सच्ची जगह पे खड़े रहने की जरूरत है. Meet the right kind of people. और आपको अच्छे लोगों को मिलने की जरूरत है. Such as going to the churches. जैसे कि आप चर्च में जाओ. Have your spiritual and biological mother and father who is gonna pray for you. आपके एक अच्छे माता पिता होने चाहिए जो धार्मिक हो और जो आपके लिए दुआ करे. Now previously when
when there was marriage, people used to have communication through letters and through phones. और पुराने जमाने में ऐसा था कि लोग चिट्ठियां लिख के या फोन कॉल्स करके वो एक दूसरे के साथ रिश्ते बढ़ाते थे या बातचीत करते थे. But nowadays what happens is girls and boys get excited if someone likes their pictures on FB or Instagram. They think that they like us or it's love. पर आज के जमाने में ऐसा है कि लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देखते एक दूसरे को वो एक्साइट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये लड़का या ये लड़की पसंद है. And they forget that they need to ask God about the right person. Is asking God that is this the right person for us or not. और वो भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर को पूछने की जरूरत है कि क्या ये जीवन साथी मेरे लिए सही है या नहीं है. Now we need to sit with our parents and pray for our future mother-in-laws and father-in-laws or whoever they're gonna be, because it is very important. और ये बहुत जरूरी है कि वो अपने माता पिता के साथ बैठे और या अपने जिस जीवन साथी है उसके माता पिता के साथ बैठे और उसके साथ उनको पूछे कि क्या ये रिश्ता सही है या नहीं. You should honor your spouse in the way you want to be honored. और आपको आपके जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही तरह के जिस तरह से आपको वो सम्मान चाहिए. Husbands, you should treat your lady the same way you want your sister to be treated. और हर एक जो by पति their है उनको spouse. हर एक जो पति है वो उनकी पत्नियों को उसी तरह से आदर दे जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी अपनी बहनों को वो सम्मान मिले. Now the reasons we are facing difficulty in marriage is because biblical men and women have refused to take responsibility. और हम देखते हैं कि जब वो रिश्ते टूटते हमने बाइबल में देखा है कि काफी सारे रिश्ते ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को उठाना जरूरी नहीं समझा. It is very important to be with God to maintain a healthy relationship. और ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहे ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ एक अच्छे तरह से जुड़ा रहे. Now anything that you're looking good in life, like having a good marriage, needs good works as well, like your good attributes. और अच्छी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे शादीशुदा जिंदगी में काम भी होना बहुत जरूरी है. It's not like you just get lucky and some people say that, oh, that couple is so lucky because they are very good. It's not lucky, it's their hard work that they have put in their marriage. और किसी की शादीशुदा जिंदगी अगर अच्छी रहती है तो ये नहीं है कि कोई उसको देख के ये कहे कि ये लोग तो बहुत लकी है और उनको ये अच्छा लक मिला है. वो नहीं है, लेकिन उस रिश्ते के पीछे उनकी मेहनत है कि उनका रिश्ता अच्छी तरह से बना रहे. Now let's look at the life of Nehemiah. अगर हम नेहमाया की जिंदगी को देखते हैं, because Nehemiah was a builder, wall builder. और जो नेहमाया जो था वो एक बिल्डर था. And we will see what principles Nehemiah has applied. We can same apply to construct our broken marriages again. और जिस तरह से नेहमाया के अंदर जो सिद्धांत थे उसके अपने जो उसूल थे वो किस तरह से थे हम उसको देखेंगे ताकि वो हम भी अपनी जिंदगियों में अपना सके. If we go to Nehemiah chapter 2, अगर हम नेहमाया की किताब और उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं, verse 17 to 18. हम 17 और 18वीं आयत में देखेंगे. तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में है कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं. तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नाम धराई न हो. फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी. तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया. Amen. Amen. So here Nehemiah is talking that now he's worried about Jerusalem. यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह जो नेहमाया जो था वो जेरूशलेम को लेके परेशान था. And he's talking about good work, to do good work. और वो जिस तरह से वो अच्छे काम करने की बातें करता है.
Now, for our marriages, as I said, we need to do good work as well. और हमारी शादीशुदा जिंदगियों में हमें भी अच्छे काम करने की जरूरत है. You don't need to be a bad spouse. आपको एक बुरा जीवन साथी बनने की जरूरत नहीं है. Because if you do, you're gonna create a problem for your spouse as well and tear their life. और अगर आप एक बुरे जीवन साथी हो तो आप अपनी जिंदगी में या अपने जीवन साथी की जिंदगी में एक मुश्किलात को पैदा करोगे. The first principle is that we have to do good work, because if we don't do good work, it's gonna tear down someone's life. और अगर आप शादीशुदा जिंदगी का पहला असूल ये है कि आप अच्छे काम करो और एक अच्छे जीवन साथी बनो. अगर नहीं बनोगे तो आप किसी और की जिंदगी को बर्बाद करके रख दोगे. Give priority to your marriage. Give time to your marriage. आप अपने शादीशुदा को बहुत अहमियत दे और शादीशुदा जिंदगी को वक्त दे. When we gather in marriage, in a celebration, we don't gather because we see that couple in a miserable life in further 19 or 20 years. और जब हम शादी को सेलिब्रेट करने के लिए जब हम मिलते हैं तब ये नहीं कहते हम कि हम उनको दुखी देखना चाहते हैं. We give our blessings to them. पर हम उनके ऊपर बरकत को बोलते हैं. But the couples need to understand that it's not only the blessings, it should be their hard work. If both put hard work in their marriage and commitments, then only God will provide fruit in their marriage. पर पति और पत्नी को समझना चाहिए कि सिर्फ बरकतों से काम नहीं चलेगा. उनको भी अच्छे काम अपनी जिंदगी में एक दूसरे के लिए करना पड़ेगा, तभी खुदा उन ब्लेसिंग को बनाए रखेगा. Now, Nehemiah is a cup bearer. अब जो नेहमाया जो था वो एक प्याली बनाने वाला था राजा के लिए. For King Artaxerxes. I'm sorry, I can't spell. नेहमाया जो था वो किंग राजा के लिए, अर्थक्षेत्र के लिए, वो राजा के लिए वो प्याली बनाने वाला था. And that was a mighty king. He was a king of Babylon. और वो बेबीलोन का राजा था, वो बहुत बड़ा राजा था. And the role of Nehemiah was very important. और नेहमाया का जो काम था वो बहुत, और उसका जो ओहदा था वो बहुत जरूरी और बहुत अहमियत वाला था. So the cupbearer had to take the responsibility. If he's giving wine to the king, he has to take a sip in first to see if nobody has given poison or anything harm to, you know. और राजा की जो प्याली भरने वाला था या जो उसके लिए कप बनाने वाला था, उसका रोल, उसका जो काम था वो ये था कि इसके पहले कि वो राजा को दे, उसको पहले उसका सिप या उसको चखना पड़ता था ताकि कोई राजा को जहर ना पिला दे. अगर उसमें जहर डाला है तो जो चखता है पहले उसके अंदर जाता है. So if anything happens, it will happen to Nehemiah first. तो अगर कुछ भी होता है अगर उस प्याली में से, तो वो सबसे पहले नेहमाया को होता. Now, the point here is we need to be cupbearers of our marriage as well in here, because if we involve other people in a marriage who don't know what's going to happen, you know, it will mess up. अगर हमें भी हमारी शादीशुदा जिंदगी में हमें भी वो कप बेरर की तरह या प्याली बनाने वाले की तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं, तो हमारा रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. Now, if you see in verse 19 and 20 as well, अगर हम 19 और 20वीं आयत में देखते हैं उसी चैप्टर की, यह सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम सबके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न कोई हक, न कोई स्मारक है. Amen. So here it's a very encouraging word for us that God of heaven, he will prosper us. और यहाँ पे हमें हौसला देने वाली बात ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें सफल करेगा.
So the foremost thing for singles is that you need to get permission from God Almighty. और यहाँ पे जो कल्ले है या जो अकेले है या जो सिंगल है उनको जरूरत है कि वो परमेश्वर से सबसे पहले इजाजत ले. You need to ask the Lord that is this the right person for you? आपको परमेश्वर को पूछने की जरूरत है कि जिस शख्स को आप चुन रहे हो क्या वो सही है आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए. If we see in Psalm 127 verse 1, जब हम देखते हैं ज़बूर 127 और उसकी पहली आयत में, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा. यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा. Amen. Hallelujah. Now here we have seen that when Lord builds our marriages, no one can break that. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमारी शादीशुदा को जोड़ते हैं तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता. But if it's our efforts and if God is not there, then it's all in vain. अगर हम इस रिश्ते को जोड़ते हैं और परमेश्वर उसमें शामिल नहीं है तो सारी मेहनत बेकार है. Nowadays there is a tradition of living together as well in living relationships. I don't know if it happens in India, Pakistan, but it's very common in UK, Australia, and all other European countries. और हमने देखते हैं कि आजकल ये नई फैशन या नया ट्रेंड है कि जब लोग एक साथ अपनी मर्जी से रहने के लिए चले जाते हैं, अलग बिना शादी के वो साथ रहते हैं, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, जो काफी कॉमन है यूरोप के देशों में. पता नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान में ये है कि नहीं, पर यहाँ पे बहुत आम है. So if you live together as a couple in your marriage, that is blessed and that's sacrificial. That is sacrificial love. और अगर आप एक साथ रहते हो तो ये भी एक तरह का बंधन है. Now if we see in Exodus 20 verse 14, आप कुछ की किताब उसका Exodus 20:14, कुछ की किताब उसका 20वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में देखे है, लिखा हुआ है कि तू व्यभिचार न करना. So God has very strict conditions for us, very strict commands for us regarding marriage. और यहाँ पे शादी को लेके खुदा ने हमें एक आज्ञा दी है. Now you need 2 permits in marriage. और यहाँ पे ये होता है कि आपको शादी में एक रजामंदी की जरूरत होती है. The first permit you need to get from God. और जो पहली रजामंदी है वो परमेश्वर से आती है. And the other is from the girl's spiritual authority. और जो दूसरी है वो हमारी आत्मिक अधिकार है उससे आती है. When this is for guys, when you go and ask from a girl's father, अगर आप लड़की के पिता को जाके पूछोगे, you need to ask humbly and in the presence of the Lord. तो आपको उसको बहुत सम्मान से और परमेश्वर के डर में रह के उस लड़की का हाथ मांगना है. Because those are the parents who have nourished that girl. क्योंकि ये जो लड़की के जो माता पिता है उन्होंने उनको बहुत नाजों से पाला होता है. And without her dad, you wouldn't have her. और उसके पिता के बिना आप उसको नहीं हासिल कर सकते. मतलब उस लड़की का पैदा होना ही नामुमकिन होता. If you respect the girl's parents, अगर आप लड़की के माता पिता की इज्जत करते हो as your own parents, जैसे आप अपने माता पिता की इज्जत करते हो, God is going to bless you abundantly. तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत देंगे. Now the principle number 2, और जो दूसरा सिद्धांत या उसूल है वो ये है, just because you got permission, it doesn't mean you got a day off. और अगर आपको रजामंदी मिल जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छुट्टी मिल जाती है.
God has told you to do good work. क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहा है कि आप अच्छे काम करते रहो. God has God has told you to put efforts in your marriage. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आप भी मेहनत करें अपनी शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए. Once you get married, you take your partner for granted. एक बार आपकी शादी हो जाती है तो आप अपने पार्टनर को ग्रांटेड ले नहीं सकते या आप अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते. And that is not at all acceptable in the eyes of God. तो परमेश्वर ये जो आपकी अपनी रजामंदी जो है ये आपकी मन मर्जी है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है. The third principle that Nehemiah teaches us, जो तीसरी बात जो हमें नेहमिया से सीखने को मिलता है, that whenever you recognize that there's a damage, तो जहां पे भी हम देखते हैं कि कोई नुकसान पहुंचा है, you evaluate the problem privately. तब आप अपने आप समस्या को खुद समझ सकते हो. If you see Nehemiah chapter 2 verse 11, अगर आप देखते हैं नेहमिया का दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं कलम, Nehemiah chapter 2 and verse 11. and verse 11. यहाँ पे लिखा है जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा. Just one verse. When he went to Jerusalem, he did not tell people around for what purpose he had come. He was silent and he was praying to God. और नेहमिया जब यरूशलेम को आता है तब वो किसी को कुछ नहीं बताता है कि वो क्यों आया है, पर वो प्रार्थना में जाता है और वो दुआ में ठहरता है. Sometimes we need to take things privately to God, not to other people. कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सीक्रेट में मतलब हम अपने आप खुदा से अपनी जो भी बातें हैं उसको लेके जाते हैं, हम उसको दुआ में लेके जाते हैं. In your marriage relationships, there will be seasons. और हमारी शादी में भी ऐसे वक्त आते हैं, ऐसे ठहराव आते हैं. Where things will become difficult and damage and harm. जहाँ पे वक्त कठिन होता है, काफी नुकसान भी होता है और हमें भी काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है. Because two imperfect people get married to each other and we have to accept each other with their perfections and imperfections. क्योंकि दो अलग-अलग इंसान एक साथ आके रहते हैं और हमें एक दूसरे को स्वीकार करना पड़ता है हमारी कमियों के साथ और हमारी खूबियों के साथ. You need to take responsibility of your own actions. और हमें अपने आप की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है कि हम अगर जो भी करते हैं गलत या सही उसके जिम्मेदार हमें खुद को होना बहुत जरूरी है. You have to evaluate the problem before it's too late in your marriage. और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए आपको खुद को उस प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है. Ask the Lord to lead you and guide you. और परमेश्वर से कहे कि वो आपको गाइड करे, वो आपको रास्ता दिखाए. So we're gonna have a look at Ephesians chapter 2. हम इफिसियों की किताब में देखेंगे उसका दूसरा अध्याय verse 11 to 22. इफिसियों की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11 to 22. 11 to 20. 22. 22. ओके. इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं वे तुमको खतना रहित कहते हैं. तुम लोग उस समय मसीह में अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे. पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा करीब हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दी और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने
में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु मसीह आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवासस्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। Amen. Hallelujah. Now here we see we are purified in the blood of Jesus Christ. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के खून में हमें पवित्र किया गया है। So we need to live our lives as a sanctified life in इसलिए Christ. हमें हमारी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह में पवित्रता से जीना बहुत जरूरी है। First Peter पहला पत्रस chapter 3 पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय verse 7. और उसकी 7वीं आयत में ये लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। Amen. Hallelujah. So here God has told, like, when husband and wife don't pray together, they don't respect each other, there's a hindrance in prayers as well. And he says that here when जब पति यहाँ पे ये कहा गया है कि जब पति और पत्नी साथ में मिलके जब दुआ नहीं करते हैं तो उनकी दुआएं भी रुक जाती है। So in order to get answers for our marriages and for our lives, for a good marriage, और तो ये कहा गया है कि अगर आपको दुआओं का जवाब चाहिए एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी में, we need to pray together. तब हमें तो एक साथ पति पत्नी को साथ में मिलकर दुआ करनी चाहिए। Not only pray together but respect each other. और सिर्फ साथ में मिलके दुआ ही नहीं करनी है पर एक दूसरे का सम्मान भी करना है। Respect is very important. और एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। As I said, never take your spouse for granted. और कभी भी अपने पति या पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपनी पति को एक दूसरे को कभी भी हल्के में ना ले। Sometimes husbands feel that, oh, she's a weaker vessel, we can, rule over her, because as Bible says that husband is the head of the family, but God doesn't want. और कभी कभी ये होता है कि पति ये समझता है कि वो कमजोर है और बाइबल में ये लिखा है कि वो अपने पति से अधीन रहे। But God doesn't want us to be in an unhealthy relationship. पर परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा रिश्ता कमजोर हो। God has designed marriage for love, for care. और परमेश्वर ने ये शादी का रिश्ता जो है वो प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए, एक दूसरे की देखभाल करने के लिए बनाया है। The Holy Spirit will help you fix a lot of things in your marriage. और पवित्र आत्मा जो है, रूह कुदस जो है, वो हमें बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करता है ताकि हमारा रिश्ता अच्छे से जुड़ा रहे। When we walk away from God's principles, जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों से, उसके रसूलों से, उसके जो उसूलों से जब हम अलग जाते हैं, then we are actually inviting outside attacks in our life. तब हम जो दूसरे मुश्किलात जो है या दूसरे जो ऐसे हम समस्या है उसको हम अपने जीवन में बुला लेते हैं। Now the fourth principle here is, जो चौथा जो सिद्धांत है वो ये है, work with the people that you trust. कि उन लोगों के साथ काम करे या रहे जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो। If you want to rebuild your marriage, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी फिर से शुरू हो अच्छी तरह से, work with the people that you trust. तो आप उनके साथ काम करें जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। And people who talk to God. और जो लोग परमेश्वर से बातें करते हैं।
more than other people in the world. कि ना कि वो दूसरे लोगों के साथ बने रहते हैं, पर वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं. You need to trust them because they will not give you personal opinions. क्योंकि जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं वो अपनी बातें नहीं बताएंगे, वो अपने ओपिनियन नहीं बताएंगे. They're gonna give you opinions what God thinks about you. पर वो ये बातें बताएंगे कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं. And it will be restored in the name of Jesus. और ये जो रिश्ता जो टूटा हुआ है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से जुड़ जाएगा. And the last principle is, और जो लास्ट सिद्धांत है वो ये है, you need to back out the outsiders out of your marriage. और जो लोग बाहर के लोग हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में खलेल करते हैं, उन लोगों से आपको दूर हटने की जरूरत है. God of heaven will prosper us. और जो आसमानी पिता है वो आपको सफलता देगा. If we read Nehemiah, अगर आप नेहमाया की किताब में पढ़ते हो, chapter 2, verse 19 to 20. नेहमाया की किताब में हम फिर से जाएंगे, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में पढ़ेंगे. यह सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा. इसलिए हम उनके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न कोई हक, न कोई स्मारक है. Hallelujah. Here Nehemiah is clearly telling them that you have no portion, no right, no memorial in Jerusalem. He's telling to the outsiders. और यहाँ पे जो बाहर वाले लोग हैं उसको नेहमाया ये कहता है, यहाँ तो ना कोई तुम्हारा हक है, ना कोई तुम्हारा भाग है, ना तुम्हारा कोई स्मरण है. So we need to take authority in our marriage. तो हमें हमारे मैरिज की जो अथॉरिटी है या हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हमें लेने की जरूरत है. And that authority only comes from the Father, the Son, and the Holy Spirit. और ये जो अधिकार या अथॉरिटी है वो सिर्फ हमें पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से मिलती है. We need to only rely on them, not outsiders in the marriage. हमें सिर्फ और सिर्फ ये परमेश्वर पे डिपेंड रहने की जरूरत है, नहीं कि हमें किसी और के ऊपर. Because people will give you many opinions. क्योंकि लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे. They're going to confuse you. They're going to tell you, this is not right, you should do this or that. और आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो आपको ये कहेंगे कि आप ये करो या आप वो करो. Sometimes the devil as well, he puts so many things in your mind. और कभी ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि शैतान भी आपके मन में बहुत सारी बातों को डाल देता है. That's why God said that you both need to sit together. और इसीलिए हमें यहाँ ये कहा गया है कि पति और पत्नी को एक साथ में दुआ में बैठना चाहिए. You need to go in private with God. आपको अकेले में परमेश्वर के सामने जाना चाहिए. And you need to ask him what he wants, what is his will. और आपको परमेश्वर को पूछना चाहिए कि क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए क्या चाहते हैं. God hates violence. क्योंकि परमेश्वर को ये जो वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मारामारी है या झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है. And by asking God what he wants in our lives, और जब हम परमेश्वर को पूछते हैं कि उनकी क्या इच्छा है हमारी जिंदगियों के लिए, we are actually getting the fruits of marriage in our lives by the Holy Spirit. तब हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी शादीशुदा जिंदगियों में वो फल पैदा कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं. Ask Holy Spirit to help you rectify your marriage. और आप पवित्र आत्मा से पूछ सकते हो कि आपकी शादी में आप क्या सुधार ला सकते हो. Before it's too late. इसके पहले कि बहुत देर हो जाए. So I believe that today what I've said in the presence of the Holy Spirit, I just want to say to everyone, to singles, couples, even parents in here, this is a very sensitive issue. और
मैं आज ये कहना चाहूंगी पवित्र आत्मा से भर के कि यहाँ पे जो जो सिंगल है या जो कपल्स है या जो पेरेंट्स है या जो माँ बाप है, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो विषय है वो अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव या बहुत जिम्मेदारी वाला सब्जेक्ट है. If we don't have God in this, अगर परमेश्वर आपकी शादीशुदा जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं है, then think about your life, that rest of your life is just ruined. It will be in quarreling, it will be insensitive, it will have all sorts of issues. अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में शामिल नहीं है तो आपकी जिंदगी में झगड़े बने रहेंगे, मुसीबतें बनी रहेगी और सारी मेहनत बेकार जाएगी. So I want to request everyone, but at least start appreciating your spouse. Don't take them for granted, because God has created everyone in the image of God. और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने जीवन साथी की तारीफ करें और उनकी कदर करें, और क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपनी खुद की छवि में बनाया हुआ है. Start taking your own responsibilities and don't blame each other. आप अपने आप की जो भी बातें हैं उसके लिए जिम्मेदार बने, नहीं कि आप दूसरों पे दोष लगाएं. If you start taking your own responsibilities, your lives will be very easy. अगर आप अपनी जिम्मेदारी को उठाएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. Marriage is two-way. You can't expect one person to work in the marriage and the other person just sits and does nothing, you know. और शादीशुदा जिंदगी का मतलब ये है कि दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है, ऐसा नहीं कि एक करे और दूसरा ना करे. So I just want to pray, and I wish you all have a blessed married life, and wish all the youngsters as well that who are looking to get right partners, always ask wisdom from the Lord, and he's gonna bless you. Amen. आमीन. और मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने शादीशुदा जोड़े हैं उनको बहुत सारी बरकत मिले, और जो लोग अपने लिए जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं वो परमेश्वर से मांगे और आप सब बहुत बरकत पाए. आमीन. Amen.